Good morning students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 4th of July for class 11th in chemistry we have the new topic, that is electronic configuration. Basically this topic we have done in the class 10th, in class 9th also. In class 9 we have done the electronic configuration, the filling of electrons in a particular shell. The filling of electron in a particular shell. किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, क्लियर? उसके आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हमने क्लास 9 में स्टडी करी, लेकिन तब तक हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जो शेल है वो सब शेल में डिवाइडेड है और सब शेल ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, क्लियर? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं यस्टरडे का टॉपिक. शेल that contain the number of subshell and subshell contains the number of orbitals. क्लास 9 में हमको इसके बारे में तो डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं कि शेल के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स सबशेल्स के होते हैं और सबशेल्स छोटे छोटे पैकेट्स ऑर्बिटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम 11th में स्टडी कर रहे हैं तो एक एक्चुअल कंडीशन स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो सबशेल्स में कैसी होगी और ऑर्बिटल्स में कैसी होगी. उसकी स्टडी करने के लिए वी हैव द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, सो देयर आर 3 प्रिंसिपल बाय विच वी कैन सी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन ए पर्टिकुलर शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स. Clear? First is Aufbau principle. Second is Pauli's principle, and third one is Coulomb's law. So there are 3 laws, there are 3 principles by which we can fill number of electrons in a particular shell, in subshell or in orbitals. Clear? So now we start with the principle Aufbau principle. This Aufbau principle compelled by Simon. This Aufbau principle compelled by Simon. Aufbau is not the name of a person. Aufbau किसी person का name नहीं है, clear? Aufbau means the building up. Aufbau means the building up. This is the building up. Means how can we build up the electrons? Okay, so that is Aufbau principle. So according to Simon, as the energy level will be increases. What is the energy level? Energy level means the value of n plus L. N is the principal quantum number and L is azimuthal quantum number. Clear? As we added these two terms n plus L, so we can calculate the value of energy. Means we can calculate the two terms shell and subshells. Clear? So according to Aufbau principle, as the n plus L value will be increases, as the n plus L value means the energy level will be increases, the electron will be filled continuously. Means lower energy level to higher energy level. Means किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम फिलिंग कर रहे हैं किसी भी शेल में, किसी सबशेल में, तो किस बिहाफ पे की जाती है?
एनर्जी लेवल के बिहाफ पे किया। तो एनर्जी लेवल किस बिहाफ पे निकाला गया है? क्वांटम नंबर के बिहाफ पे। दीज टू क्वांटम नंबर्स n प्लस l, n एंड l दोनों क्वांटम नंबर्स का यूज इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द टू क्वांटम नंबर्स हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन के लिए और स्पिन के लिए यूज किए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू द साइमन, n plus l value increases, electron will be continuously filled in a particular shell and subshell, because n represent to shell and n represent to subshell. Clear? So this is the term of above principle. Now we take the some examples. We very well know about the shells. First shell, second shell, third shell, fourth shell, fifth shell, sixth shell and seventh shell. ये बहुत प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है उनमें से किसी भी एलिमेंट में शेल की क्वांटिटी 7 से ज्यादा। सो वी वेरी वेल नो अबाउट द शेल्स। शेल इज नॉट मोर देन 7 फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए 7 से ज्यादा शेल की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अभी तक कोई एलिमेंट ऐसा डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 7 से ज्यादा कैलकुलेट होंगे। क्लियर? अगर नंबर ऑफ शेल 7 है तो हमने क्वांटिटी यूज करी है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? एंड ईच शेल हैव द स्पेसिफिक सबशेल्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट शेल रिप्रेजेंट टू only one subshell, that is known as S. Second subshell represent to the two subshells S and P. Third shell represent to the three S, P and D. Fourth subshell represent to the S, P, D and F. Fifth subshell represent to the S, P, D and F. Sixth represent to the S, P, D. And 7 represent to only S and P. So these are the subshells. These are subshells. Clear? Now how can we justify कि ये फर्स्ट शेल का S है या सेकंड शेल का S है, थर्ड शेल का S है, या P सेकंड शेल का P है, थर्ड का है या फोर्थ का है? So now we can denote by the number of shell. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5PD, 5F, 6S, 6P, 6D and 7S and 7P. Again I repeat, किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ शेल्स की क्वांटिटी 7 से ज्यादा नहीं होगी। इंडिविजुअल हर एक शेल में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सबशेल्स होता है। फर्स्ट शेल में S, सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही सबशेल्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए, दैट इज S और P। थर्ड शेल में 3 आइडेंटिफिकेशन में है SPD। 4 एंड 5 में SPDF, 4 के 4 सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। 6 में SPDF होता है और 7th शेल में सिर्फ S और P रिप्रेजेंटेड है। क्लियर? नाउ वी चेक, अगर मैं 9th के अकॉर्डिंग डिस्कशन करता तो 9th के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसमें होगी, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, सॉरी 1s में, फिर 2s फर्स्ट में, फिर सेकंड शेल में, फिर थर्ड शेल में, फिर फोर्थ शेल में। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास उस समय तक जो हम एटॉमिक नंबर लर्न करते थे वो 18 तक लर्न करते थे, और अगर हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर 18 का रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट होता था 2 8 मींस 10 क्लियर एंड 8, और टीचर्स ने हमको ये भी बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा 2 8 8 की रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शेल दैट रिप्रेजेंट द 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द सेकंड शेल दैट रिप्रेजेंट द 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड रिप्रेजेंट टू द आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये डिफिनेशन नहीं थी कि कहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल्स होंगे, बिकॉज वी हैव द 2 सबशेल्स। क्लियर? एंड ईच सबशेल्स हैव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमको पता है कि S में सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल होता है, लेकिन P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में ही होती है। क्लियर? सो वी हैव द न्यू टॉपिक, that is this one. Okay, and this topic is represented by Simon. This topic is represented by
साइमन, और साइमन ने इसको n+l रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया। ओके, सो व्हाट इज n+l? नाउ वी टेक ईच एंड एवरी एग्जांपल। 1s means first shell, and value is 1. For s the value of s is, for l 0, that is 1. So for 1s the value of n+l is 1. Now the 2s means, that's the first example, this one is the second example. 2s, 2 into 0, sorry, 2 plus 0 is equal to 2. For 2p, 2 plus 1, that is 3. So first of all electron will be filled in 1s, after that it will filled in second p, second s, and then filled in second p. For 3s, 3 plus 0 is equal to 3. For 3d, for 3p, 3 plus 1 is equal to 4. For 3d, 3 plus 2 is equal to 5. Now the question arises, sir, in this part when the 2p is present, the n+l value is 3. In case of the 3s, the value of n+ is also 3. क्लियर? इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, मतलब एक सेकंड p और 3s इन दोनों की वैल्यूज क्या है n+l के लिए सेम, मतलब इसकी भी एनर्जी लेवल बराबर है इसकी। अब इलेक्ट्रॉन पहली किस्म फील्ड होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेसर नंबर का होगा, मींस सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू लो है। अगर कभी भी दो एनर्जी लेवल की एनर्जी इक्वल आती है, इट मींस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस में होगी? लोअर वाले में। क्लियर? नाउ 3d रिप्रेजेंट टू 5, 4s मींस 4 plus 0 is equal to 4. Now the new question is arises, sir, थर्ड शेल की एनर्जी हायर है और फोर्थ शेल की एनर्जी लो है, जबकि शेल्स फोर्थ बाद में आता है और थर्ड शेल पहले आता है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी इसके भी फोर्थ शेल में पहले होगी और थर्ड के डी में बाद में होगी। इसकी अरेंजिंग अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इस बिहाफ पे कर सकते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p. So this is the increasing order of n+l values. जितने भी शेल और सब शेल्स हैं, अगर उनकी एनर्जी लेवल को हम n+l के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये फाइंड आउट होगा ये स्ट्रक्चर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. First electron will be entered in 1s. Clear? After that, when the s will be filled, the electron will be filled in, filling start will be in second s. When second s will be filled completely, then electron will be start in 2p. When the p subshell filled, the electron entered in third shell, third s. After that 3p and after that 4s before 3d, and when 4s will be completely filled, then electron will be entered in third d. So this is the sequence according to n+l value. Clear? तो अबव के अकॉर्डिंग n+l की जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया है। ओके, हम किसी भी 2 एग्जांपल्स को ले सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि लोअर शेल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में हो सकती है। फॉर एग्जांपल 5f, क्लियर, एंड 7s. 7s means 7 plus 0 is equal to 7, and 5f means 5 plus 3 is equal to 8. It means n+l value is lower for 7s. It means the electron will be filled firstly in 7s and after that in 5f. Okay, so this is the pattern of n+l values. जितनी भी n+l values हैं उसके पैटर्न को मैंने रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। क्लियर? अगर आपको ये स्ट्रक्चर लर्न है, then we start the filling of electrons. Okay, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। क्लियर?
Now we have the rest of the two principles that we started in the next topic. Okay, thank you students.